Sethia and I'm your social science teacher. Today we are going to study chapter 2 of civics, institutions of democracy of class 7th. In this chapter you will learn about universal adult franchise, how election help people to choose their own representatives, what is the role of election commission in conducting free and fair elections, and about the importance of political parties, and also we are going to learn about what is a coalition government. So let's start. Universal adult franchise. Universal adult franchise means that every adult in the country has right to vote. No person can be denied voting right on the ground of caste, creed, religion, gender, etc. So, the meaning of universal adult franchise is quite clear to you that universal adult franchise gives every adult citizen right to vote, and no person is denied to vote on the basis of or on the ground of caste, creed, religion, gender, etc. This feature is an essential part of democracy as it exhibits political equality. Now, this feature, universal adult franchise, is, is a essential part of a democracy just because it provides a political equality. Now, struggle for universal adult franchising. There had been a long struggle to achieve universal adult franchisee across the world. Now, there were long struggles fought for universal adult franchisee throughout the world. At the beginning of 19th century, many European nations did not allow their people to vote. Now, during 19th century or at the beginning of 19th century, many European countries did not allow their citizen right to vote. In some countries only women had no voting right, and on the other hand कुछ ऐसी countries थी जहाँ पे women's को voting right नहीं थे. Even in the United States of America, the people of African origin did not have voting right until 1965. And an example is also given that United States of America में अफ्रीकन ओरिजिन के जो लोग थे उनके पास वोटिंग राइट नहीं था 1965 तक, और फिर उसके बाद उनको वोटिंग राइट दिया गया. दो स्ट्रगल ऑफ डेमोक्रेसी वांटेड voting rights to granted universally, men or women, rich or poor, white or black. This is called universal adult franchise or universal suffrage. Now, अब वो voting right ग्रांट, वो जो राइट है उसको ग्रांट करने के लिए या वो पर्सन, वो मैन, विमेन, रिच, पुअर, ब्लैक, वाइट, जिन्होंने ये वोटिंग राइट मिलने के लिए स्ट्रगल किए हैं कि उन्हें भी ये वोटिंग राइट मिले, राइट, वो जो स्ट्रगल है उस स्ट्रगल को यूनिवर्सल सफरेज कहते हैं या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं. यूनिवर्सल सफरेज, उस मूवमेंट, उस स्ट्रगल को यूनिवर्सल सफरेज कहते हैं. इन इंडिया इट वॉज ग्रांटेड इन द ईयर 1950, और इंडिया में सारे मेन और विमेन को वोटिंग राइट कब दिए गए थे? 1950 में. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स द राइट टू वोट टू ऑल सिटीजन ऑफ एंड अबव 18 ईयर्स ऑफ एज. और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू वोट देता है, ये राइट देता है दैट वी आर अलाउड टू वोट टू ऑल द सिटीजन्स who are above 18 years of age. सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आपको समझ में आ गया होगा, और उसके लिए जो स्ट्रगल किया गया था उसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सफरेज कहते हैं. और हमने बहुत सारी कंट्रीज़ देखी जहाँ पे ये वोटिंग राइट नहीं दिया गया था इनिशियली. इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है, ये जो हमारा राइट है या ये benefit which is given by our Indian constitution, right? So let's see now its importance. Universal suffrage shows political equality. Now, universal suffrage means
voting right to all citizen shows political equality. It means that political every citizen is equal, they all are having voting rights. Second is it encourages young people to participate in electoral process. Now also our universal adult franchisee motivates or encourages young people to participate as a candidate in election process. Next is it initiates people in the act of choosing their representative. Now it also initiates people or it motivates people to choose their own representative. It motivates people. Next it brings to power a government based on the consent of people. Now meaning of consent is permission given by people to do something. It brings the power a it's it bring to power a government based on the consent of people. Now the party which got the maximum votes comes into the power. So वो गवर्नमेंट पावर में आती है जो लोगों ने सेलेक्ट की है, जिसको लोगों ने कंसेंट दिए, कंसेंट इन द सेंस वोट दिया है, राइट। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस थे, जैसे कि पॉलिटिकल इक्वालिटी शो करता है, यंग जनरेशन या यंग लोगों को इनकरेज करता है, फिर लोगों को मोटिवेट करता है कि वो रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करें, और वो ही गवर्नमेंट पावर में आती है जो जिसे लोगों ने कंसेंट दिए या वोट दिए हैं। नेक्स्ट इज इलेक्शंस। In a democracy, a supreme power rests with the people. Now, डेमोक्रेसी में जो सुप्रीम पावर है, जो मेजर पावर है, वो किसके हैंड्स में है? लोगों के हाथ में है। कैसे? लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपनी चॉइस से सिलेक्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन लोगों से होती है, तो पावर किसके हाथ में? लोगों के हाथ में है। दे हैव द चॉइस ऑफ डिसाइडिंग इन either directly or indirectly who can be their representative, और सिंस जो मैंने आपको बताया, दे हैव चॉइस टू डिसाइड, लोगों के पास ये चॉइस होती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन बनेगा। दिस इज़ डन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, और ये जो इनका रिप्रेजेंटेटिव जो लोग इलेक्ट करते हैं, राइट, जिसे वोट करते हैं, वो कौन सी प्रोसेस से सिलेक्ट होते हैं, कौन सी प्रोसेस से पावर में आते हैं? दैट इज इलेक्शन के थ्रू। लोग वोटिंग इलेक्शन में करते हैं। सो इलेक्शंस thus is a process through which people can elect their representative for running the government by voting for them. So election क्या है? Election is a process through which people elect their representative for running the government by voting them, right? Elections are held at regular intervals. अब इलेक्शंस रेगुलर इंटरवल्स में होते हैं, मतलब हर 5 साल में होते हैं। ये जो इंटरवल है ये 5 years का होता है इंडिया में। एन इलेक्शन इज अ contest between candidate of different political parties for the same position. अब इलेक्शन क्या है? एक तरीके का कॉन्टेस्ट है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करती है? डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज सेम पोजीशन के लिए पार्ट लेती हैं। इन सच प्रोसेस सम वुड विन एंड सम वुड लूज। अब ऐसी सिचुएशन में या ऐसी प्रोसेस में कुछ हार जाते हैं, कुछ जीत जाते हैं। टुडे द इलेक्शन आर द कॉन्टेस्ट बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। द पार्टी विच गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स फॉर्म द गवर्नमेंट। अब वो पार्टी जिसे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वोट मिले हैं वो क्या आती हैं? वो पावर में आ जाती हैं, वो गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। Sometimes there are individual who contest an election
without belonging to any established political party. अब कुछ ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो इलेक्शंस में पार्ट लेते हैं बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के बिलोंग बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग किए, है ना, कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी नहीं होते हैं, वो इंडिविजुअली भी पार्ट लेते हैं कॉन्टेस्ट में, पॉलिटिकल इलेक्शंस में. सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट. और ऐसे पर्सन को जो बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग किए इलेक्शन में पार्ट लेता है, कॉन्टेस्ट में पार्ट लेता है एज अ कैंडिडेट, तो उसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कहते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहते हैं. ओके, सो आई होप इलेक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे. देन नेक्स्ट इज कंडक्टिंग इलेक्शंस. In a democratic country like India, the task of holding election in the country is entrusted to an independent constitutional body called the Election Commission of India. अब डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे कि इंडिया, यहाँ पे ये इलेक्शन का जो टास्क है वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कंडक्ट करती है, मतलब एक ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन, राइट, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, ऐसी बॉडी उस इलेक्शन को कंडक्ट करती है और उसे बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इलेक्शंस को कंडक्ट करवाती है, राइट. द हेड ऑफ इलेक्शन कमीशन इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर हु इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. और इसका जो हेड होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर. और उसे इलेक्ट कौन करता है या उसे कौन अपॉइंट करता है, दैट इज प्रेसिडेंट. हर और हिज टास्क इज टू कंडक्ट इलेक्शन इन द कंट्री इन फ्री एंड फेयर मैनर. और उनका टास्क क्या होता है कि ये जो इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं, कंडक्ट किए जा रहे हैं, वो फ्री और फेयर मैनर में कंडक्ट किए जाएं, राइट. सो इलेक्शंस का जो हेड, मतलब जो बॉडी है जो कंडक्ट करवाती है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहलाती है. देन उसका हेड होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और उनका क्या टास्क होता है कि वो फ्री और फेयर मैनर में इलेक्शंस को कंडक्ट